Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camera International Science College at Talagang. Welcome to all the student classroom training इस video lecture में. I hope you will be fine and I hope you would have prepared all the lecture whether they are delivered by me or Sir Mumtaz. Dear student, as you know that I was studying about modal verbs and we have covered round about 2 or 3 modal verbs. We have also learnt about could, only active voice. The passive voice of could is also missing in our lecture, which will be delivered in upcoming days. Dear student, right now I am going to study or teach about should as a passive voice. Today I am going to talk about, you cannot say today on front of a sentence. Remember, आप कभी भी किसी जुमले का आगाज़ today से नहीं कर सकते. I am going to teach you about passive voice of should today. हमेशा आपने today, yesterday, Monday, Sunday ये हमेशा end पे बोलने हैं और अगर कभी बोलना पड़ जाए तो it was Sunday today, कल अतवार थी या कल जुम्मा था या कल जुम्मा होगा. It will be फ्राइडे टुडे, यानी कल जुम्मा होगा. आप ये नहीं कह सकते कि जो है वो फ्राइडे विल बी, इस तरह आप नहीं कह सकते. या कल छुट्टी होगी, टुडे विल बी हॉलीडे. रॉन्ग, इट विल बी हॉलीडे टुडे. आप कभी भी किसी सेंटेंस का आगाज़ किसी दिन से नहीं कर सकते. तो डियर स्टूडेंट, I was talking about should and you have already covered the topic of should regarding active voice. Right now I am going to teach you should as a passive voice. आज हम passive voice पे बात करने जा रहे हैं and I have already taught you about the psyche of, about the sense of passive voice. कि passive voice के अंदर there are two important states, there are two important conditions. When these two important conditions are lying in a sentence, it means that you can construct that particular sentence in passive voice. अगर वो उर्दू के अंदर लिखा है, ये दो शराइत पूरी हैं, ये दो कंडीशन फुलफिल्ड हो रही हैं, then you would be able to construct that particular sentence from Urdu to English in passive voice. और वो दो कंडीशन क्या है? नंबर 1 कंडीशन is no subject in a sentence. अगर किसी, if there is no subject in a sentence, that specific or particular sentence is related to passive voice. अगर किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ही मौजूद नहीं है. सब्जेक्ट क्या होता है? डू यू नो अबाउट इट? सब्जेक्ट जो जुमले के अंदर काम करता है या सम टाइम जुमले के अंदर काम ही नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ माई ब्रदर, देयर इज़ नो एन एक्शन इन दिस सेंटेंस. इसमें कोई एक्शन नहीं है. देयर इज़ नो एन एक्शन इन दिस सेंटेंस. ये मेरा कॉलेज है, इट इज़ माई कॉलेज. देयर इज़ नो एन एक्शन इन दिस सेंटेंस आल्सो. क्या आप सब्जेक्ट ही नहीं है? तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं है. सब्जेक्ट तो है, इट सब्जेक्ट है इसके अंदर. ही इज़ माई ब्रदर, ही इसके अंदर सब्जेक्ट है. डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट की दो डेफिनेशन है. सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जाए. सब्जेक्ट whom we talk about or the person who is performing an action in a sentence. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाए या जो कि जुमले के अंदर किसी काम को सरअंजाम दे, तो वो भी कहलाता है सब्जेक्ट. यानी द पर्सन who is performing an action in a sentence, that person is called the subject of that sentence. Dear student, तो याद रखना, he is my brother, इसके अंदर he सब्जेक्ट है because we are talking about he. हम किसके बारे में बात करें? उसके बारे में कि वो मेरा भाई है. हम किसके बारे में बात करें? कॉलेज के बारे. इट इज़ माई कॉलेज. ये जो इट है ना, ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है. तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the identity of passive voice? Whether the sentence is written in Urdu language or English language, you can locate, you can construct the idea whether the sentence is related to active voice or passive voice. और वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नो सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. यानी अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है
तो दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इज रिलेटेड टू पैसिव वॉइस। तो वो जुमला किसका है? वो पैसिव वॉइस का। अगर किसी जुमले के अंदर से हमारा सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, और मैंने उसका आपको एक तरीकाकार बताया था कि आपने वर्ब ढूंढना है, उसके साथ कौन लगाना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि देयर इज सब्जेक्ट और नो, उसके अंदर सब्जेक्ट है या नहीं है। सेकंड, सब्जेक्ट इज नॉट लोकेटेड एट इट्स प्लेस। सब्जेक्ट अपनी जगह पर मौजूद नहीं होता। व्हाट इट मीन्स? It means there is a sequence of SVO regarding active voice. When we talk about active voice, तो SVO का sequence part and parcel. We cannot make a sentence, we cannot construct a sentence from Urdu to English language if there is no the sequence of SVO. अगर subject, verb और object का sequence नहीं है, subject always leads on front. Whether we are talking about Urdu language, whether we are talking about English language. वो खाना खाता है, वो खाना खाता है, या वो खाना खा सकता है, या उसे खाना खाना चाहिए। अब देखिए, वो उर्दू के अंदर आ रहा है, he eats meal, he इंग्लिश के अंदर आ रहा है। It means that it is obviously clear thing that subject always leads on front whether we are talking about Urdu or English. हम उर्दू की बात करें या इंग्लिश की बात करें, subject always leads on front. But in this case, इस केस के अंदर सब्जेक्ट लीड नहीं करता फ्रंट पे। सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट के बाद होगा, या सम केसेस के अंदर सब्जेक्ट जो है विल कम आफ्टर वर्ब। सब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं होगा, फ्रंट पे लीड नहीं करेगा, तो वो जुमला भी डियर स्टूडेंट क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस। और एक बात बता दूं, आइडेंटिटी इज द सेम वेदर द सेंटेंस बिलोंग्स टू एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आइडेंटिटी वही है, चाहे ये करें, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन प्रीवियस लेक्चर। तो ये दो बातें क्लियर हो गई। नाउ व्हाट इज द पैटर्न, नाउ व्हाट इज द सीक्वेंस टू मेक और कंस्ट्रक्ट अ पैसिव वॉइस सेंटेंस। कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है? तो देयर इज अ वेरी सिंपल एंड ऑब्वियस पैटर्न। नंबर वन, object always lead on front in passive voice. Remember कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट ऑलवेज लीड्स ऑन फ्रंट एंड इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट ऑलवेज लीड्स ऑन फ्रंट। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? पहले आता है। और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज पार्ट एंड पार्सल, इट इज कंपल्सरी regarding passive voice sentences that you are bound to use two important things. One is object, and the second is third form of verb. You cannot get rid from these two things. You cannot avoid from these two things, object and third form of verb. This is also compulsory. It is also compulsory. चाहे तो आप कोई भी पैसिव बना रहे हैं, कोई भी टेंस है, कोई भी जुमला है, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव जब बात आप करते हैं, तो दीज टू थिंग्स आर रिलेटेड टू कंपल्शन। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपने हर हाल में लिखनी है। सेंटर का सीक्वेंस बदलता रहेगा। हेयर वी आर गोइंग टू यूज़ अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज, जो हमें नेटिव स्पीकर बताते हैं। नेटिव स्पीकर वो होते हैं जिनकी ये ज़बान है। वो कहते हैं कि आप पैसिव बनाते हुए शुड का यू आर कंपेल्ड एंड बाउंड टू यूज़ शुड बी। आपने क्या इस्तेमाल करना है? शुड बी का इस्तेमाल करना है। तो क्लियर हो गया? ये आपकी इक्वेशन है इन मॉडर्न इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर भी ये इक्वेशंस बन रही हैं, पहले मैथ के अंदर थी या फिजिक्स के अंदर थी, एटसेट्रा। राइट नाउ the linguistics are making equations regarding English language, and if you want to make your concept according to realistic point of view, then these equations are enough to memorize. तो ये आप याद कर लें तो यही काफ़ी है आपकी अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैं एक जुमला बनाता हूँ। नंबर वन, सिंपल जुमले इसलिए लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। खत डाक में डालना चाहिए। देखिए ना, आप खत डाक में ही डाला जाता है। जो आपका लेटर बॉक्स बना होता है, या आप डाकखाने की तरफ जाते हैं तो कोई भी जगह वो मतलब
दैट पर्टिकुलर प्लेस इज़ लोकेटेड फॉर दिस पर्पज़, ख़ास मकसद के लिए वहाँ पे होती है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले आपने वर्ब को ढूंढना है, डालना है। यहाँ पे है, कौन है? कोई भी नहीं है। देख लें किस चीज़ को बात की जा रही है, ख़त को, तो ऑब्जेक्ट। तो देयर इज़, ये पूरा का पूरा वर्ब का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे ख़त की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट आपका ख़त है, बट जो बंदा काम कर रहा है वो मौजूद नहीं है। तो सिंपल दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट लेटर शुड बी, लेटर ऑब्जेक्ट शुड बी। ये जो मैं साथ में दी या ए या आ नहीं लिख रहा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आर्टिकल का जब मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा तो क्लियर हो जाएगा। लेटर शुड बी, ये पोस्टेड कर दें बस, इसके अंदर डाक में डालना, पूरी ट्रांसलेशन आ जाएगी। पोस्ट का मतलब डाक में डालना होता है और पोस्टेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये ऑब्जेक्ट आ गया और ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, जो कि दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों कंपलसरी हैं। नेक्स्ट एक और लेते हैं, परिंदे हमें खरीदने चाहिए। काम कौन सा हो रहा है? खरीदना। कौन है? हमें। किस चीज़ को? परिंदों को। इन दिस केस यू कैन सी, यू कैन लोकेट दैट द सब्जेक्ट इज प्रेजेंट हेयर, बट सब्जेक्ट इज नॉट लीडिंग ऑन फ्रंट, यानी फ्रंट पे नहीं आ रहा। और जब सब्जेक्ट फ्रंट पे नहीं है, इट मीन्स वो जुमला भी किसका है? पैसिव का है। तो ये जुमला भी किसका बन गया? पैसिव का। तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या है? परिंदे। तो वो क्या हो गया? बर्ड्स शुड बी आ गया जी। ऑब्जेक्ट शुड बी फार्मूले के मुताबिक, इक्वेशन के मुताबिक, बर्ड्स शुड बी खरीदना, बाय होता है, और थर्ड फॉर्म बाट, बाय अस। क्यों लगाया है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द टॉपिक ऑफ लेट, कि जब भी बाय और लेट का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट, इट विल बी हेल्पफुल, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मेकिंग योर नोट्स रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज। जी डियर स्टूडेंट, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वाइट बोर्ड? ओके, गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम मज़ीद इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये हम बात कर रहे थे अफर्मेटिव के बारे में। ऑल द सेंटेंसेस वर रिलेटेड टू पॉजिटिव सिचुएशन, अफर्मेटिव सिचुएशन। राइट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट नेगेटिव, कि जब आप शुड का नेगेटिव बनाते हैं, व्हाट शुड वी डू नाउ? अब हमें क्या करना चाहिए? तो वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे? शुड प्लस नॉट प्लस बी। आपने जस्ट शुड के बाद क्या लगा देना है? नॉट लगाना है, और फिर आफ्टर दैट बी। अब देखें, I should not keep company with bad boys। मुझे बुरे लड़कों के साथ मेल जोल नहीं रखना चाहिए। इसका तर्जमा ये बनता है, आई शुड नॉट कीप कंपनी विद बैड बॉयज़, कि मुझे बुरे लड़कों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। या यहाँ पे मैं यूँ भी कह सकता हूँ, ये आपके लिए भी हो सकता है। ये एक सजेशन आपको दी जा रही है। अब यहाँ पे देखिए एक और जुमला बनाते हैं।
they should not take part in irrelevant मैटर्स, कि उनको गैर ज़रूरी जो मामलात हैं उनमें हिस्सा नहीं देना चाहिए। दे शुड नाट, असल बात क्या थी, शुड के बाद क्या आ गया, नाट आ गया, यहाँ पे भी शुड के बाद नाट। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। The right pronunciation of this word is interrogative, not interrogative. But you have also listened that most of the people are pronouncing this word incorrectly. वो गलत इसको pronounce करते हैं। They mostly say that, वो क्या कहते हैं, interrogative. It is the wrong pronunciation. The right pronunciation of this word is interrogative. Sentences. इसके अंदर आप क्या करेंगे, should plus, sorry there is no subject on front, object plus be। देखिए यहाँ पे मैंने गलती की, क्योंकि अब आप क्लासेस के अंदर होते तो आप मुझे कह देते कि सर यहाँ पे आपने बी नहीं लिखा, यहाँ पे भी आपने बी नहीं लिखा, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो हमसे भी समटाइम लिखते हुए वो गलती हो जाती है, स्पेल के अंदर भी हो जाती है, बिकॉज देयर इज़ नो रूल फॉर स्पेलिंग। स्पेलिंग का कोई रूल नहीं है, 2-4 रूल्स हैं, उसके अलावा आपको ये सारे के सारे याद करने पड़ते हैं, और कैसे हैं मैं एक लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। इसी तरह देखें यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो मैंने ठीक दे दिया, लेकिन लिखते हुए क्या हो गई, गलती हो गई, तो वो अब सामने आप होते तो आप डेफिनेटली मुझे बता देते। तो यहाँ पर देखिए शुड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, जस्ट इन्हीं को बना लेते हैं, शुड आए। अब देखिए आई ऑब्जेक्ट था, ओ नो ओ नो ओ नो, इट्स ऑल गोइंग रॉन्ग, ये सारा का सारा गलत जा रहा है। आई बैग द पार्डन, ये बिल्कुल टोटली वायलेट कर गया, मैं एक्टिव समझाने लग गया, ये पैसिव था। तो डियर स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अब जो पहले हमने बनाया था उसी को हम फॉलो करते हैं, शुड द लेटर, अब आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा क्योंकि स्टार्ट पे नहीं है, शुड द लेटर बी पोस्टेड। अब इसको आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं, ये आपका क्वेश्चन बन गया, सवालिया बन गया, ठीक है। अब इसका आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं, लेटर शुड नॉट बी, इसके अंदर दोनों शामिल कर देते हैं, इंट्रोगेटिव भी। अब क्या हो गया जी, शुड द लेटर बी पोस्टेड, क्या ख़त लिखना चाहिए, तो वो आ गया सवालिया, लेटर शुड नॉट बी, तो पोस्टेड, तो ये आपका क्या बन गया, नेगेटिव। दूसरा सेंटेंस क्या था, बर्ड्स वाला, बर्ड्स शुड नॉट बी बॉट बाय अस, ये आपका नेगेटिव हो गया, ये देख सकते, शुड नॉट, और यहाँ पे शुड आपका ऑब्जेक्ट से पहले, तो यहाँ पे भी शुड आपका ऑब्जेक्ट से पहले, शुड द बर्ड्स, अब यहाँ पे हम दा लगा रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, शुड ऑब्जेक्ट से पहले, शुड द बर्ड्स बी फिर बाद में आएगा, शुड द बर्ड बी बॉट बाय अस, और ये इंट्रोगेटिव का होता है, शुड, मैंने पहले रेज कर दिया था, शुड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, ये रिलेट करता है। तो डियर स्टूडेंट, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो थोड़ी सी गलती हुई है वो लिखते हुए हो गई थी, तो उसके अलावा आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया, पूरे टॉपिक को आपने अच्छी तरह से कवर कर लिया है, और इसकी घर में आपने प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू टैकल द सिचुएशन, टू टैकल द योर कोर्स। व्हेन यू विल कम इन द कॉलेज, you must be asked about these topics by me,
मेरी तरफ से ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।